जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2023 का पास पेपर, और उसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एज वी डिस्कस्ड इन द पेपर ओरिएंटेशन, is a mix of basic and advanced investment appraisal. Part A is about capital rationing. 15 मार्क्स का ये पार्ट है। और फिर 15 मार्क्स का जो पार्ट है, पार्ट बी इज अबाउट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इवेल्युएटिंग अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और उनका डिफरेंट रेशियोज पे इम्पैक्ट। तो ये हम डिस्कस करते हैं बाद में। पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए। ये दोनों 15-15 मार्क्स के पार्ट्स हैं। इट्स 30 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट्स एन इजी क्वेश्चन, राइट। तो पार्ट ए तो खैर बहुत ही आसान, सो आसान। अब मैं इसकी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। इट्स अबाउट कैपिटल राशनिंग, और फिर हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। आई एम श्योर पेपर आपके हाथ में होगा, मैं इसे रीड कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड ए, determine the optimal investment strategy for BD surplus funds, assuming the investment opportunities are not divisible and no additional finance is available at the current time. Right, the upper investment opportunities are not divisible. Not divisible यानी indivisible की कैटेगरी हो गई। और फिर उसके बाद बताया गया कि करंट टाइम पे यानी टाइम जीरो पे ये कैपिटल लिमिटेशन है। यू शुड अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज अवेलेबल विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन फ्यूचर ईयर्स। सो लिमिटेशन इज फॉर सिंगल पीरियड एंड एट टाइम जीरो, राइट, एंड द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। तो इस बेसिस पे अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। ये रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली। क्वेश्चन नंबर 2, Bartik Developments Limited (BD) is a property investment company located in Punjab. The company is listed on the Pakistan Stock Exchange. BD has recently divested some assets that did not align with the company's strategic objectives. Consequently, BD has surplus cash of 10,000 million to reinvest. यानी 10 बिलियन के उनके पास फंड्स हैं, 10,000 मिलियन के टू री इन्वेस्ट। इन फंड्स की बात हो रही है, इनकी इन्वेस्टमेंट करनी है। There are 4 suitable investment projects that the board is considering. The details of each project is shown below. West Tower Residence in Multan. West Tower Residence WTR is phase 2 of a larger project that comprises 4 tower blocks of residential apartments. WTR is an 18-floor apartment tower spread over 15 canals of land. The site will accommodate 50 apartments of various sizes and will include a gym and other commercial use space on the ground floor. General knowledge, no numbers. WTR is a JV with another property, is a joint venture with another property investment company, Golba Investments Limited. Golba has already completed phase 1 of the residential project. However, due to difficulties with other projects, Golba has not been able to raise sufficient finance to start phase 2 of the development plan. BD has been invited as a 50% joint venture partner. अब आप इसमें 50% JV partner होंगे, तो whatever investment you will make, whatever जो कि cash inflows the project will generate, you will have a 50% share in the investment and in the cash flows. इसका मतलब ये हुआ 50% JV partner का. The project is due to start immediately and is expected to be completed in 3 years time. The total cost of phase 2 is estimated at 12,000 million. 12,000 million का मतलब आपकी cost अगर आप 50% partner हैं तो 6,000 million हो गई. Capital would be invested in 3 equal tranches with the first installment due as soon as possible यानी time zero and the remaining payments due after 1 and 2 years respectively. Okay, तो अगर आप को 6,000 मिलियन देने हैं तो टाइम जीरो पे आप 2,000, फिर ईयर 1 पे 2,000, फिर ईयर 2 पे 2,000, ऐसे आपका कैपिटल आउटले होगा. Golba anticipates that half of the apartments will be sold off-plan during the construction. Cash generated from off-plan deposits is expected to be 1,000 million in 2 years time. 2 साल में 1,000 मिलियन रेज होंगे, जिसमें से आपका शेयर 500 होगा. Off-plan sales will complete when the project ends in 3 years time, generating further fresh proceeds of rupees 6,000 million. 3 साल के बाद 6,000 मिलियन फिर आपको मजीद मिलेंगे इस ऑफ प्लान sales से. The remaining half of the apartments and commercial space would be completed at the end of the 3-year period. These would be leased on long-term leases and would generate annual cash profits of 1,000 million indefinitely. फिर प्रोजेक्ट का 1,000 मिलियन कैश इनफ्लो इंडेफिनेटली होगा. जितने भी कैश फ्लोज हैं उन्हें डिवाइड बाय 2 यानी 50% करके अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे. बिकॉज एज अ जेवी पार्टनर हमारा आउटले भी 50% है
और हम इनफ्लोज के लिए भी, इनफ्लोज के परस्पेक्टिव से भी हम 50% एंटाइटलमेंट है हमारी। लीज पेमेंट्स वुड बी ड्यू इन एडवांस, राइट। तो 3 साल के एंड से अगर ये काम शुरू हो जाएगा तो टाइम जीरो से ही आपको ये 500 मिलियन मिलना शुरू हो जाएंगे, एंड वुड कमेंस एंड सून एज द स्पेस इज कंप्लीटेड। ये हो गया पहला प्रोजेक्ट। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है होटल पैराडाइज इन कराची, फिर तीसरा प्रोजेक्ट है लॉयंस गेट मॉल्स इन पेशावर, फिर चौथा है रायवन रोड लाहौर, राइट। तो अब हम ऐसा करते हैं, और बाद में बल्कि हम पढ़ लेते हैं द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, होटल पैराडाइज कराची में भी फिर उन्होंने हमें ऐसे ही कैश इनफ्लोज बताए हैं, कैश फ्लोज बताए हैं सारे प्रोजेक्ट के। लॉयंस गेट मॉल एंड पेशावर, इसके भी कैश फ्लोज बताए गए हैं। रायवन रोड लाहौर के भी कैश फ्लोज बताए गए हैं। फिर नीचे आ गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बीडी एक्सेप्ट्स प्रोजेक्ट्स दैट जनरेट अ पॉजिटिव एनपीवी व्हेन डिस्काउंटेड एट अ 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो राशनिंग से पहले पहला काम तो क्या होगा, हमें एनपीवी निकालनी है, और उसके लिए 12% हमारे पास डिस्काउंट रेट है। अज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज आर स्टेटेड नेट ऑफ टैक्स एंड इग्नोर इन्फ्लेशन। तो टैक्स और इन्फ्लेशन को हमें वर्किंग से इग्नोर करना है। बीडी कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन एनी सरप्लस फंड्स। ये उस वक्त आएगा जब, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के केस में ऐसा होता है कि हमारा कुछ सरप्लस कैश बच जाए जो इन्वेस्ट ना हो, उसके लिए ये 5% का रेट गिवन है। तो बजाय इसके कि मैं चारों को पढ़ूं और फिर बाद में कैलकुलेशन शुरू करूं, हम ऐसा करते हैं कि एक एक प्रोजेक्ट को पढ़ते हैं, उसके कैश फ्लोज देखते हैं, उसकी एनपीवी पहले निकालते हैं। चारों की एनपीवी आ जाएगी, उसकी बेसिस पे फिर हम जो है ना देखेंगे कि कौन से सारे ही पॉजिटिव एनपीवी हैं, क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के केस में हम क्या करते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम पीआई की हेल्प भी ले लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, और फिर उस बेसिस पे हम देखते हैं कि व्हाट्स द ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट मिक्स। इज दैट राइट? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन 2A। इसमें हम ये कर रहे हैं ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर बीडी। बिफोर डिवाइजिंग ऑप्टिमल या एक्सप्लोरिंग, लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो हम हर प्रोजेक्ट की पहले एक एनपीवी कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट मिक्स को एक्सप्लोर करने से पहले, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको ऊपर करें ताकि स्क्रीन थोड़ी सी हमारी बड़ी हो जाए, हमारी काम करने के लिए हमें आसानी हो जाए। तो मैं पहले हेडिंग दे रहा हूँ प्रोजेक्ट 1 वेस्ट टाउन WTR। वेस्ट टाउन रेजिडेंसी को WTR क्या लेते हैं, और मैं लिख देता हूँ 50% JV है हमारी, राइट। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ इसके कैश फ्लोज बनाते हैं। 0 year, 1 year, 2 year, 3 year, 3 year, and then 4 year onwards, right? तो हमारी ऑफ कोर्स ऑल फिगर्स रुपीज इन मिलियंस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट से। प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए हमें बताया गया कि टाइम जीरो पे हमारी कॉस्ट होगी कितनी, 3 हिस्सों में हम 6,000, टाइम जीरो पे 2,000 होगा हमारा, फिर ईयर 1 पे 2,000 होगा हमारा, फिर टाइम जीरो पे हमारे 2,000 के कैश फ्लो होंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ वो हम इन सब को जितने ये कैश फ्लो होंगे मैं नीचे तक ले जाता हूँ। होम नंबर्स कॉमा फिर नंबर्स, ठीक हो गया जी। ये हो गया जनाब इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट। तो ऊपर कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी हो जाए हमारी ठीक। अच्छा, प्रोजेक्ट कॉस्ट के बाद अब क्या आ गया हमारे पास, हमारी दो तरह की सेल्स हैं, एक ऑफ प्लान सेल्स और फिर लीज की पेमेंट्स। तो हमारी ऑफ प्लान सेल्स पे हम चले जाते हैं, कितनी है ऑफ प्लान सेल्स।
ऑफ लैंड सेल्स हैं 500 ईयर 2 से होगा, क्योंकि 1000 है ईयर 2 के एंड पे। और फिर फर्दर कैश एट 3 इयर्स के टाइम पे 6000 है, तो हमें मिलेगा 3000। फिर आएंगी हमारी लॉन्ग टर्म लीज पेमेंट्स इनफ्लोस। अच्छा, वो स्टार्ट होंगे ईयर 3 से ऑनवर्ड्स, टाइम 0 से 500 हजार हजार होंगे, तो हमारे हैं 500 500, ऐसे ही है। एंड दिस इज इनडेफिनेटली, राइट। तो हम कहें कैश फ्लोस, इसको मैं हाइड करूं, नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लो लिख देता हूँ। इन 3 सालों के तो हम ये टाइम 0 से सब तो सम कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ अब ईयर 4 वाले जो है ये इंडेफिनिटली चल रहे हैं, तो ईयर 4 से इन्फिनिटी तक की कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंडेफिनिटली। इसको मैं करता हूँ फ्रॉम ईयर 4, फिर ये इंडेफिनिटली है 500। तो हम इन सब की जब कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो ईयर 3 के एंड पे आएगी। तो हम पहले ईयर 4 टिल इन्फिनिटी तक के कैश फ्लोज, ये परपेचुटी है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर ईयर 3 में उसे ऐड करके सारे कैश फ्लोज की पीवी निकाल लेंगे। तो मैं यूं कर लेता हूँ, पीवी ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 4 ऑनवर्ड्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी पीवी निकालूं तो इट शुड बी 500 डिवाइडेड बाय 12%, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट इज 500 डिवाइड बाय 12%। अब हम इन सब को टोटल अगर करें तो फिर इनकी हम एक पीवी निकाल लेते हैं। इन सब का एक हम करते हैं टोटल। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाके चलिए हम करते हैं सम। बेसिकली तो ईयर 3 के सिर्फ कैश फ्लोस में ये सम हो जाएगा, बाकी तो वही है। अब पीवी एट द रेट ऑफ 12%, वो होगी टाइम 0 की, तो कोई पीवी निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं इसी में फॉर्मूला 1 + 12% पावर, ये आ गया 12% पावर, ये 0। और इसको ड्रैग करके हम यहाँ ले चलते हैं, और फिर हमारे पास आ गई एनपीवी। ये जस्ट सम दिस 475, राइट। ये हमारे पास आ गई इसकी प्रोजेक्ट WTR की एनपीवी। तो विथ एन इन्वेस्टमेंट है टाइम 0 पे 2000, और एनपीवी है हमारी पास 475, बाद में जाके हम पीआईबी निकाल लेंगे। अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ, विच इज होटल पैराडाइज HP कराची। होटल पैराडाइज कराची, राइट। और इसको उठा के हम पेस्ट कर देते हैं ऊपर। ये हमारी एक वर्किंग हो गई कंप्लीट, एक प्रोजेक्ट की एनपीवी की। क्योंकि इसमें मेजर काम एनपीवी ही कैलकुलेट करना है, बाद में उसके बाद फिर है राशनिंग की कहानी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड होटल पैराडाइज इन कराची।
HP कराची, मैं रीड कर रहा हूँ इसके बारे में. दिस इन्वेस्टमेंट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद द होटल पैराडाइज चेन ऑफ होटल्स HP. As with previous developments, BD will fund the initial construction of the hotel and once complete, provide a property lease and management service to the hotel chain. Due to the repeat nature of the project, the cash flows are relatively easy to predict. The hotel will cost, ये है important बात, 7850 million that will be incurred immediately. Time zero पे हमारी investment हो गई 7850. The construction will take 1 year to complete. एक साल हो गया. फिर second year से क्या होगा? BD owns an option to purchase and build on the land and so construction can start straight away. Once complete, BD anticipates annual cash profits of 1100 million यानी 1100 million. These cash profits will continue for the foreseeable future यानी straight फिर 1100 million का cash outflow है. तो अब हम इसको अगर एक थोड़ा नीचे ले आए अपनी आसानी के लिए. अच्छा, और यहाँ करते हैं हम इन्वेस्टमेंट एट T0. वो क्या है हमारी? इन्वेस्टमेंट एट T0 है 7850, राइट. और कैश इनफ्लो है फिर ईयर, यूं समझें एक साल कंप्लीट हुआ फिर ईयर 2 से, और ईयर 2 से कैश इनफ्लोज होंगे हमारे पास 1100 फ्रॉम ईयर 2 टिल इंफिनिटी, यूं कह लें आप, राइट, परपेचुअली. तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? हमें क्या करना है एट टाइम जीरो? इफेक्टिवली व्हाट वी विल बी डूइंग इज 1100 को हम डिवाइड करें 12% से, तो हम ईयर 1 के उस पे आ जाएंगे. फिर इसे मजीद डिस्काउंट करें बाय 1.12 टू अराइव एट टाइम जीरो. तो इफेक्टिवली हम इसे उठाएंगे, डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 1.12, ये आ गई क्लियर कैश फ्लो. तो इसकी बेसिस पे एनपीवी क्या आ गई? एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज सिंपल 335 million. तो दिस इज सो आसान, सो आसान, सो आसान, राइट. तो हम ये उठाते हैं और बल्कि ये हम इनको ऊपर ले जाते हैं. चलिए जी. NPV is this plus this 335 million. चकट HP कराची. अच्छा, इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट आ गई टाइम जीरो पे 7850. उसके बाद है हमारे पास कैश इनफ्लोज, ये है हमारे पास ईयर 2 में 1100 million फ्रॉम ईयर 2 टिल इनफिनिटी, राइट. फिर इनकी पीवी निकालनी, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, पीवी ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज टाइम 10 पे जो आएगी ये ईयर 2 है. तो इसमें हमें करना ये पड़ेगा 1100 डिवाइडेड बाय 12% परपेचुटी से. फिर तो ये जब करेंगे तो ईयर 1 के एंड पे आएंगे, इसे फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा 12%, तब जाके टाइम जीरो पे आएंगे. तो इफेक्टिवली दिस डिवाइड बाय 12% कि हम ईयर 1 के एंड पे आ गए, परपेचुटी की डिस्काउंटिंग. फिर टाइम जीरो पे आने के लिए 1.12 से फर्दर डिस्काउंट कर लिया. इसकी बेसिस पे अब हमारे पास एनपीवी क्या आ जाएगी? एनपीवी वुड बी सिंपली दिस प्लस दिस इज 334.5 यानी 335 million. इसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं, 334.5 यूं लिख देते हैं. ये उठाते हैं अब हम और इसे कर देते हैं ऊपर पेस्ट अपने रिच टेक्स्ट एडिटर में.
HP कराची, ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया हमारा। हम यहाँ पे आ गए थे, अब हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट आ गया HP कराची, और उसके बाद हम फिर नीचे आ गए। अब हम तीसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा लॉयंस गेट मॉल इन पेशावर। अब हम हेडिंग देते हैं यहाँ पे नीचे, लॉयंस गेट मॉल पेशावर। ठीक है जी, लॉयंस गेट मॉल पेशावर, इसके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है हम रीड करते हैं। The investment is the upgrade of an existing shopping mall, Lionsgate Mall, owned and managed by BD. The site needs improvement, and so a full refurbishment would commence straight away and take a year to complete. यानी टाइम जीरो से काम शुरू हो जाएगा, एक साल में इसकी रिफर्बिशमेंट कंप्लीट होगी. Many of the units are empty, but the occupiers of the remaining units would need to be compensated for loss of earnings during the 1 year renovation period. ये भी कॉस्ट आएगी कि हमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी उनको for the loss of earnings. In total, the cost of renovation and compensation would be 3150 million. This would be paid straight away. Anytime zero पे 3150 का outflow. Once the improvement are completed, BD board expects to fill all the units within the mall and increase the annual cash profits from 1100 से existing to 1580. The incremental would be 1100 existing, 1580, 580 million for the foreseeable future. तो एग्जैक्टली यही काम जो हमने वहां किया है ना, यही आएगा। इन्वेस्टमेंट अगेन टाइम जीरो की होगी, कैश इनफ्लोस, पीवी, यही सारी कहानी हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। और सिर्फ फर्क यह है कि फिगर्स डिफरेंट हैं, बाकी द रेस्ट इज सेम। 3850, इट इज सॉरी 3150 टाइम जीरो पे। इनफ्लोज हमारे स्टार्ट होंगे 580 के ईयर से ऑनवर्ड्स। पीवी यही हम उठाते हैं, कंट्रोल सी ये फॉर्मूला, यहाँ करते हैं पेस्ट, राइट। ये यही है फ्रॉम ईयर टू टिल इंफिनिटी। और यहाँ इसमें हम लिख देते हैं 580 को हमने क्या किया, डिवाइड बाय 12% पे डिवाइड बाय 1.12 is the same thing, and this is the NPV 1165 million. इज दिस क्लियर? तो बहुत ही आसान है, ये एग्जैक्टली एचपी के हिसाब से ही इसके कैश फ्लोज हैं, नॉट वेरी डिफरेंट। ये हमने उठाया और इसे यहाँ अपने आंसर पे पेस्ट कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक हम ऊपर चीजें पेस्ट नहीं करते तब तक दे वुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर मार्किंग। हमारा आंसर ऊपर है, स्प्रेडशीट इज फॉर अस टू वर्क एंड देन पेस्ट अबव। अब सिर्फ एक आखिरी हमारा रह गया, वो है रायवंड रोड लाहौर। अब मैं लिखता हूँ हेडिंग रायवंड रोड लाहौर, आर लाहौर कर देता हूँ, आर लाहौर। ठीक है जी, आर लाहौर के कैश फ्लोज क्या है, आइए अब रीड करते हैं। द लास्ट प्रोजेक्ट इज द डेवलपमेंट The last project is the development of a new residential housing on Raivan Road, Lahore. The project is known internally as Raivan Road. The site will be developed under 2 identical phases, each phase involving the construction and sale of 35 houses. Phase 1 can start straight away as BD has obtained planning permission for the development. Phase 1 would be completed after a year. एक साल में वो complete होगी. Work on phase 2 will start straight after the completion of phase 1 and again would be completed after a year. The current plans show that each phase comprising 25 10-marla houses and 10 one-canal houses. The expected cost is 20 million for a 10-marla house and 50 million for a one-canal house. Cost will be incurred at the start of each phase. तो हमारे 25 10 मरला हैं और 10 वन कैनाल हैं। 20 मिलियन 10 मरला के लिए है और 50 मिलियन एक कैनाल की कॉस्ट है. कॉस्ट विल बी इनकर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ईच फेज. Given the demand for housing, the board anticipates that all houses will be sold upon completion. The cash sales are expected to be 30 million for a 10 marla house and 85 million for a one canal house. तो अब हमारी दो फेजेस हैं, दोनों फेजेस के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं टाइम जीरो से. 0 1 और 2, 2 सालों में ये खत्म होने वाला है प्रोजेक्ट. फेज 1 की कंस्ट्रक्शन, फेज 1 की सेल, फेज 2 की कंस्ट्रक्शन, फेज 2 की सेल. तो हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 कंस्ट्रक्शन, राइट.
फेज वन की कंस्ट्रक्शन होगी हमारी कितनी 25 है हमारे पास 10 मरला, और उनकी जो कॉस्ट है वो है 20 मिलियन। फिर इसमें हम ऐड करें 10 है हमारे पास 10 कैनॉल हाउस, और उनकी कॉस्ट है कितनी 50 मिलियन। तो ये 1000 मिलियन की फेज वन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और बिल्कुल ऐसे ही फेज टू की भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इतनी होगी, और वो भी अपफ्रंट हम डाल देंगे। पेस्ट फेज टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी यही होगी, सिर्फ ये है कि वो इनकर होगी ईयर वन के एंड पे जाके। अब हम सेल्स पे आ जाते हैं। फेज वन सेल प्रोसीड्स, यहाँ नहीं यहाँ लिखेंगे फेज वन सेल प्रोसीड्स। फेज वन सेल प्रोसीड्स, राइट। फिर हम करेंगे फेज टू सेल प्रोसीड्स। दोनों की सेल प्रोसीड सेम होंगी, सिर्फ टाइमिंग ही का फर्क होगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा, अब सेल प्रोसीड्स क्या है? हमें बताया गया है कि 25 मरल हमारे 10 मरला हाउसेज हैं, और वो एक बिकेगा 30 पे। 25 × 30 प्लस 10 है हमारे पास एक केनाल हाउसेस, और वो बिकेगा each at 85 मिलियन। ये 1600 की हमारी सेल प्रोसीड्स यहाँ आएंगी, और यही 1600 की प्रोसीड्स हमारी यहाँ आएंगी। अच्छा, हम इन पे भी अपना ये काम जारी रखते हैं। होम कॉमा दिस दिस। अच्छा जी, ऊपर हम टोटल कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया ये नेट कैश टूवर्ड्स पीवी एट द रेट ऑफ 12%। दिस डिवाइड बाय 1.12 पावर दिस। सो दिस, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एनपीवी पे हम आ जाते हैं। एनपीवी इज सम ऑफ दिस ऑल, और ये आ गई हमारे पास एनपीवी 811। तो आर आर लाहौर की एनपीवी आ गई 811। आया हमने इसे, और हमने इसे ऊपर पेस्ट कर दिया 811, राइट। एनपीवी। अच्छा जी, जब अब ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, लेट समराइज द समरी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एट T0 and their NPVs, NPIs are given below। अब हम इन चारों की एक समरी बना लेते हैं, और वो समरी डालते हैं। समरी, और समरी से हमें हेल्प हो जाएगी क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। प्रोजेक्ट भी हम यहाँ से अपने उठाते हैं। एक है WTR, इसकी अच्छा बल्कि यूं करते हैं हम रोलेक्स। यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्ट, यहाँ लिखते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखते हैं एनपीवी, और फिर यहाँ लिखते हैं उसकी पीआई। ठीक है जी, प्रोजेक्ट। इसको और नीचे ले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एट T0। अच्छा जी, इसकी इन्वेस्टमेंट T0 पे क्या है, फिर ऐसे ऊपर करते हैं, इससे भी थोड़ा ऊपर करते हैं, ताकि हमें चीज़ें आसानी से हम करें।
इसकी इन्वेस्टमेंट टाइम 0 पे क्या थी? एनपीवी ऊपर से उठाते हैं चीज़ें। ये थी जनाब 2000। एनपीवी थी जनाब 475। ठीक है, पीआई हम खुद निकाल लेते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, ये हमारी पीआई। तो ये हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि माइनस में कर लेंगे तो खुद ही ये हो जाएगी। और ये जो पीआई सारे प्रोजेक्ट्स की आएंगी इनको हम 2 डिजिट्स तक निकालते हैं। जी। उसके बाद द सेकंड प्रोजेक्ट इज एचपी कराची। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 7850। इसकी जो एनपीवी थी वो कितनी है? हम यहीं से लिंक करते हैं। इसकी एनपीवी 3334.5 एंड बेस्ड ऑन दिस हम सबकी पीआई तो हम ड्रैग करके निकाल लेंगे। चलिए, द थर्ड प्रोजेक्ट इज आर लाहौर, लायंस गेट पेशावर। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 3150। इसकी जो एनपीवी है वो है 1165 एंड दिस इज 0.37। द लास्ट वन इस आर लाहौर। इसकी इन्वेस्टमेंट टाइम 0 की है दिस। इसकी एनपीवी है 811 और दिस इज दी। अब इसको हम सम अगर कर लें तो टाइम 0 पे हमें एक्चुअली टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी? वो है 14,000 रिक्वायर्ड फंड्स। और अवेलेबल है हमारे पास 110,000। दैट्स द स्टेट ऑफ कैपिटल राशनिंग। तो पहले तो हमें ये भी कंफर्म हो गया कि यस, the available funds are less than what are required to invest fully in all the 4 projects। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें राशनिंग करनी पड़ेगी। अब हम राशनिंग जब हम करेंगे, they are all indivisible projects, so we'll have to figure out what are the possible combinations, और उन possible combinations में जो best project NPV हमें देगा उसको हम पिक करेंगे। अब इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अपनी उसके हिसाब से चलें तो रैंकिंग के हिसाब से तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज द वर्स्ट वन, नंबर 4। राइट? Any projects with these combinations would probably 1 and 2 would probably make more sense। तो पहले तो हम ये समरी उठाते हैं और ये ऊपर डाल देते हैं जो हमने समरी की ऊपर बात भी की है। और हमने यहाँ पे समरी पेस्ट कर दी। ठीक है जनाब। अब इस समरी की ही बेसिस पे अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम लेट्स एक्सप्लोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। राइट? अब हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2 इस तरीके से चलेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस क्वेश्चन का वो क्या है? सरप्लस कैश पे 5% रिटर्न मिलेगा। ये वाला एलिमेंट भी हमें जहन में रखना है। रिक्वायरमेंट के ऊपर का पैराग्राफ में रीड कर रहा हूँ। बीडी एक्सेप्ट्स प्रोजेक्ट्स दैट जनरेट अ पॉजिटिव एनपीवी व्हेन डिस्काउंटेड एट अ 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Assume that all cash flows are stated net of tax and ignore inflation। फिर अंडरलाइन कीजिए BD can earn a return of 5% on any surplus funds। तो अगर जहां पूरे 10,000 नहीं होंगे नेचुरली वहां जो बचेंगे वो 5% पे उसकी एनपीवी आएगी। राइट? अब हम कहते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन नंबर 1, ऑप्शन 1 पहले करते हैं। राइट? ऑप्शन 1 में हम पहले पिक करते हैं, यहाँ हम डाल देते हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और एनपीवी। राइट? पहले ऑप्शन में चलते हैं। हम पहले उठाते हैं विच ऑफ कोर्स आर लाहौर, उसकी इन्वेस्टमेंट उठाते हैं। दूसरे नंबर पे उठाते हैं हम लॉयंस गेट पेशावर, उसकी हम उठाते हैं और आता है 3150। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पे। हमें 10,000 हैं, हमें पता है ये थर्ड नंबर पे इसे उठाते हैं।
इसकी एनपीवी, इसकी देख लेते हैं, और यहाँ से इन सब की एनपीवीज उठाते हैं। पहले की एनपीवी 811, दूसरे की एनपीवी 1165, तीसरे की एनपीवी आ गई 475, और फिर हम यहाँ रुक गए। अब यहाँ हमारा कितना कैश यूज हो गया? अब हमारा कैश यूज हो गया 6150। तो बैलेंस सरप्लस कैश कितना है? बैलेंस सरप्लस कैश है 10,000 माइनस दिस इज 3, और इसकी एनपीवी ऑफ सरप्लस कैश ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये 3850 वुड नेचुरली बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% इंटू 1.05। इसको फिर हम डिस्काउंट करेंगे बाय 1.12, तो इसकी पीवी आ गई। इसमें से हम माइनस कर दें 3850, तो ऑटोमेटिकली इसकी हमारे पास एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग एट 5% एंड योर रिक्वायर्ड रेट इज 12%। तो मैं स्ट्रेट यही इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लेता हूँ विदाउट एनी, ये मल्टीप्लाई होगा एट 1.05 एक साल के लिए। इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि एक साल ही की राशनिंग है, बाय 1.12, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो आ गई। इसमें से माइनस कर देते हैं यही अमाउंट, ये हमारे पास एनपीवी आ गई 241। टोटल एनपीवी बन गई जनाब हमारे पास, नेट एनपीवी ऑफ द ऑप्शन वो बन गई हमारे पास 2212। ये उठाते हैं और ऑप्शन नंबर 1 की एनपीवी ऊपर डाल देते हैं। ऑप्शन 1, उसकी एनपीवी। फिर नीचे आ जाते हैं, ऑप्शन 2 देखते हैं, व्हाट इज ऑप्शन 2। अच्छा जी, ऑप्शन 2 में हम क्या करें? अब आते हैं ऑप्शन 2। अच्छा, जब ऑप्शन 2 कैलकुलेट करते हैं हम, तो ऑप्शन 2 में इसमें तो हमने पहले आरआर से लिया। अब आरआर लेने के बाद लेट सपोज करें हम उठाएं सीधा का सीधा, और 2 और जो 3 पे है वो नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ नंबर 4 हो सकता है। अब ये उठा के देख लेते हैं। पहले उठाते हैं RR1, क्योंकि ये नंबर 1 है। इसकी ठीक हो गया जी। ये भी हम यहाँ से ही कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, पेस्ट। अच्छा, उसके बाद हम उठाते हैं और नंबर 4 को पिक करते हैं। नंबर 4 पे जो जिसकी यानी पीआई थी, विच इज एचपी कराची, ये डाल के देखते हैं, और इसके इन्वेस्टमेंट और वो ऑटोमेटिकली यहाँ खुद ही आ जाएंगे 7850। इसको हम कर लेते हैं डिलीट, और इनको तो हम नीचे ले जाके हम मजीद ये अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जब हमने ये कर लिया, अब हम बाकी कुछ करने के काबिल है या नहीं ये देखते हैं। 8850 हो गया। अब 8850 हो गया तो उसके बाद क्या हम ये कर सकते हैं? लॉयंस गेट वाला ये भी नहीं कर सकते, 3150 2000 है, ये भी नहीं कर सकते, 10,000 से ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब जो हमारे पास सरप्लस कैश एनपीवी, अब यही चीजें यहाँ भी आएंगी। करें पेस्ट, तो हमारे पास सरप्लस कैश क्या आएगा? वही अमाउंट यहाँ से यही उठाते हैं, इसी फॉर्मूले को यहाँ कॉपी करते हैं। अब आ गया 1150। 1150 की जब हम एनपीवी निकालेंगे तो दिस, इसी फॉर्मूले को बल्कि अगर हम कॉपी कर लें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमने कॉपी किया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला हमारा, कंट्रोल सी, इसको और नीचे वाले दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं।
copy and then we have paste 1074. ये आ गया हमारे पास दूसरे ऑप्शन की एनपीवी, दैट एनपीवी इंक्लूडिंग द नेगेटिव एनपीवी ऑफ सरप्लस कैश। नेचुरली ऑप्शन नंबर 1 लुक्स बेटर इस ऑप्शन के हिसाब से। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा भी देखते हैं। ये आ गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन। अच्छा जी, अब आइए ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑप्शन 3 में हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 एक और निकालते हैं हम। ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 3 में हम पहले चलते हैं और उठाते हैं इस समरी में से। हमने नंबर 1 पीआई वाले को पिक किया था, अब हम पहले नंबर 2 पीआई वाले को पिक करते हैं और उसके साथ हम चेक करते हैं कि क्या ये मुमकिन है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है 7850 इसके साथ। तो फिर क्या मुमकिन है, फिर हम 3 और 4 को देख लें। हम 3 और 4 को, क्योंकि 2 और 4 ये तो मुमकिन नहीं है। 1 2 3 तो हम साथ देख चुके हैं, तो अब हम उठाते हैं 3 को, यानी WTR। और उसके बाद हम उठाते हैं नंबर 4 को, विच इज एक्चुअली DHP कराची। और इन दोनों की ये फिगर भी उठा के यहाँ पे खुद ही ले आते हैं। चलिए, और अब हम बिल्कुल ऐसे ही वो सारा प्रोसेस करते हैं। बैलेंस, सरप्लस कैश, एनपीवी का, ये सारी फिगर्स उठा के बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ये आ गई वन, फॉर्मूला पेस्ट करना था, सम इन दिस। ये हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं इन दैट वे कि ये कैलकुलेशन वाइज आ जाए, हो जाए कि फिगर्स पेस्ट हो। ये आ गया 190 9850। तो ये बैलेंस इज बेसिकली, एक सेकेंड, 10,000 माइनस, सॉरी, हम दिस माइनस 10,000 किया। तो ये आ गया 819 हमारे पास। यहाँ जो हमारे पास सरप्लस कैश की एनपीवी आ जाएगी, ये हम उठाते हैं और पेस्ट करते हैं। ये फिगर बननी चाहिए। सिंपली कैलकुलेट करते हैं, दिस into 1.05 divide by 1.12 and minus this। ये हमारे पास हमने उल्टा कर लिया सरप्लस कैश को। हम पहले 10,000 से करने, तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव की ये साइन का मसला हो रहा है। ये तो यार देयर ना, क्योंकि सरप्लस कैश की एनपीवी पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये बात हमें पता है, क्योंकि जब 5% पे ये इन्वेस्ट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब बेसिकली यहाँ हमने वो अमाउंट लिखनी ही नहीं लिखी और डायरेक्टली बैलेंस सरप्लस कैश यहाँ डाल दिया है। वहाँ हमने ये टोटल किया था पहले ऊपर। मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ टोटल करते हैं। पहले हमने यूँ किया था एक्चुअली, इसलिए वहाँ कॉपी पेस्ट करते हुए भी मसला हुआ। 10,000 माइनस दिस, या तो ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई और ये बैलेंस बच गया था।
801, तो अभी हम उठाते हैं 801। ऑप्शन ये नंबर 3 है, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, F2 करके हम खोलते हैं, ये सेल नहीं ओपन होता, यहाँ से हम एडिट करते हैं, इस बार के थ्रू हम एडिट करेंगे। अब मैंने इसे उठाया और हम ऊपर ले गए, तो ये तीनों ही पॉसिबल ऑप्शन थे, तीनों को हमने पिक कर लिया पीआई की बेसिस पे। वैसे ही हमें एक इंडिकेशन थी कि ऑप्शन 1 वुड बी गिविंग अस द बेस्ट पीआई, क्योंकि हमने उसमें जो पिक किए हैं वो पहले वो प्रोजेक्ट्स पिक किए हैं विच हैव गॉट हाईएस्ट पीआई। तो नेचुरली ये प्रोजेक्ट्स जो हमें एनपीवी देंगे वो अपेरेंटली उससे ज़्यादा ही होगी जो बाकी ऑप्शंस देंगे। अब हम यहाँ पे फाइनली एक रिकमेंडेशन लिख सकते हैं कि based on the above calculations, the optimal investment strategy is to invest in the following in following projects, यूं कह लें, या इन 3 projects other than आपका जो 4th है, in the following projects, वो कौन कौन से हैं हमारे। 1 is WTR, right, और वही सीक्वेंस से हम लिख लेते हैं जो हमारी यहाँ सीक्वेंस है। ऑप्शन 1 की सीक्वेंस यहाँ पे हमारे पास आ रही है। RR लाहौर, लॉयंस गेट शावर, और तीसरा WTR-JV, right? So based on this is how we will conclude this part A। पार्ट ए में हमने कंक्लूड किया, और हम एक बार इस पूरे सॉल्यूशन की सीक्वेंस को अब हम देख लेते हैं कि वी स्टार्टेड ऑफ ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर बीडी, और उसमें हमने कहा बिफोर एक्सप्लोरिंग हमें क्या करना चाहिए, एनपीवी फाइंड आउट करनी चाहिए। हमने एनपीवी स्टार्ट की, डब्ल्यूटीआर की पहले एनपीवी निकाली, फिर एचपी कराची की हमने एनपीवी कैलकुलेट की, फिर हमने लॉयंस गेट, फिर आरआर की, फिर हमने समरी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट at time zero and their NPVs and PI indices are given below। फिर हमारी ये PIs आ गई, PIs की बेसिस पे रैंकिंग। लेट्स एक्सप्लोर possible combinations। Option number 1, option number 2, option number 3, the optimal way is to invest in the following projects, which is option number 1 actually, RR Lahore, Lionsgate Mall Peshawar, and WTR-JV। So with this we conclude question number 2 part A। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं part B, right?